یہ مجال ہوتا ہے، لیکن میں ایک نئی بیماری چلی ہوئی ہے، ویڈیوگرافی۔ کیا؟ ویڈیوگرافی کی۔ باجا بجتا تھا تو یہ سنی لوگ ہیں، سنی لوگ بجاتے ہیں، بڑا بدنامی آتی تھی، اپنے سنی لوگ بھی بولتے تھے حضرت، لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے، بہت غلط ہوتا ہے، اور سنیوں کو بدنام کیا جاتا تھا۔ لیکن ابھی ویڈیوگرافی چل رہی ہے، اور اتنی گندی بلا ہے، اتنی گندی بلا ہے کہ ایک گرافر کو 25,000 50,000 سنیما بنانے کے لیے، یعنی اپنی بہن بیٹیوں کے جسم کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے دیتے ہیں۔ غلط کہہ رہے ہیں تو بولیے۔ ہلدی لگا رہے ہیں، یہاں تک ہاتھ اٹھا لیا، اس کا فوٹو لو۔ مہندی لگا رہے ہیں، پیر یہاں تک اٹھا لیا، اس کا فوٹو لو۔ اور اس وقت جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے، ویڈیوگرافر کو ایسا داخل ہوتا ہے عورتوں کے بیچ میں جیسے لگتا ہے ایک ساتھ سب کا نکاح اسی کے ساتھ ہوا ہے۔ شرم آتی ہے نکاح پڑھانے والوں کے جسم کے حصے کھلے ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت پردہ ہے، اس کی آواز بھی پردہ ہے، یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ستر پوشی کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے ستر کیا ہے؟ چہرہ اور ہتھیلی اور پیر کے قدم کے علاوہ پورے جسم کا ڈھکنا یہ اس پر واجب ہے، کھولنا حرام ہے۔ حل تو یہ ہے کہ بال بھی کھولنا حرام ہے، لیکن آج کی تقریبات میں، آج کی شادیوں میں ہماری بہن بیٹیوں کے جسم کے کپڑے کھلے ہوتے ہیں، بال تو چھوڑو جسم دکھتا ہوا نظر آتا ہے، حرارت آتی ہے، شرم آتی ہے۔ جب نکاح پڑھانے قاضی آتا ہے، اور اس وقت جب نکاح پڑھانے قاضی آئے گا چادر قمیض دو، لیکن کیمرہ مین سے سارا فوٹو، بلکہ بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہے اتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ اپنی تصویر لینے کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے پوسٹ بنانے کے لیے کیمرہ مین اس کی باڈی پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کبھی ادھر گھماتا کبھی ادھر گھماتا ہے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ اپنی بہن بیٹیوں کو بیاہلو کر کے اپنے آپ کو بڑا رئیس سمجھ رہے ہو؟ خدا کی قسم لعنت ہے ایسی قوموں پر جو اپنی بہن بیٹیوں کی آبرو ریزی کا خیال نہیں رکھتا۔ اسلام تو وہ قوم ہے کہ اگر قوم کی ایک بیٹی کبھی ظلم میں ہوتی تھی تو پوری قوم کی درد سے سینہ پھٹ جایا کرتا تھا، جان دینا گوارا کرتے تھے، لیکن مذہب اسلام پہ آچانا گوارا نہیں کیا گیا۔ تاریخ اسلام یہ رہا۔ نعرہ تکبیر، ابھی جو حالات ہمارے ہیں، نعرہ رسالت کے اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کھانا کھا رہے ہیں اس میں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، کتنی ہڈیاں کہاں جمع ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا ایک جگہ رہ گیا باتھ روم میں لے لینا، حرام کرو یہ بھی کر لینا آپ۔ کیا تماشا ہے بھائی؟ ہماری بہن بیٹیاں کھا رہی ہیں، اس کے فوٹوگرافی ہو رہے ہیں، جسم پہ کپڑے کم ہوتے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو ملاحظہ کر لیجئے گا آپ لوگ جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اور کیمرہ مین تو ایسا جوتا پہن کے سب پہ چڑھتا ہوا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ سب کا شوہر یہی ہے، اور اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، بس اس کے لیے سب اوپن ہوتا ہے کہ ڈوب مرنے کی بات ہے، باجا بجانا تاحت درست ہے، اس کے مناسبت سے بہتر ہے وہ، اس کے مناسبت سے حرام تو وہ بھی ہے، لیکن یہ جتنا گندہ ہے اتنا گندہ وہ نہیں ہے، وہ صرف باجا بجتا ہے، لیکن یہ ہماری بہن بیٹیوں کے پورے جسم کے فوٹو لیا جاتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو کہیں سے کوئی دقت نہیں سمجھتے ہیں، یہ شادیوں میں بڑے خرافات ہیں۔ اور اس کے بعد جب شادی ختم ہو جاتی تو پورا پریوار بیٹھ کر اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کی آبرو ہم نظارہ کرتے رہتے ہیں اور عائش کرتے ہیں کتنا اچھا لباس ہے، کتنا سندر دکھ رہی ہے، ہم ہائی لیول کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ارے اگر ننگا ہونا ہائی لیول ہے تو تم سے ہائی لیول تو کتا بلی سور ہے، اس لیے وہ پورا ننگا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ننگا ہو جاؤ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ شادی سرکار کی سنت ہے، میرے آقا کی بیٹی کے بعد طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح جو مولا علی مشکل کشا سے ہوا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے سر کے بال کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، کبھی آسمان نے نہیں دیکھا۔ میری یہ سچائی کڑوی لگ سکتی ہے آپ، مولانا ایڈوانس بول رہے ہیں، یہ لگ سکتا ہے آپ کو، لیکن یہاں سے جانے کے بعد سنجیدگی سے میری ایک بات اگر میری بہن بیٹی کو کوئی دیکھے برداشت کر سکتے ہیں؟ تصویریں لیتا ہے، اس کے سر کے دوپٹے ہٹے اور بلوچ چھوٹے بلوچ پہنے نہیں ہوتی ہماری بہن، کیا جسم نہیں چھلکتا ان کا؟ اس جاڑے کے موسم میں بھی ہماری بہنیں اتنی متلائج ہو گئی ہیں کہ سویٹر سال نہیں، جسم کھلا ہونا ضروری ہے، یہ متلائج ہمارا ہے۔ شہروں میں تو یہ بیماری بہت عام ہے، لیکن دیہاتوں میں بھی بجھتی چلی جا رہی ہے۔
खल्क मर्दों औरतों के बीच में बफे सिस्टम का सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे के बीच में घुस के खा रहे हैं। और हल्दी का मसला आता है, उस दिन इस कदर मजाक होता है, इस कदर बेहाई होती है हल्दी के दिन। वो भाभी के साथ मजाक करता, वो साली के साथ मजाक करता। किस शरीयत ने इजाजत दी है कि भाभी मजाक करने की चीज है, साली मजाक करने की चीज है? किस शरीयत ने इजाजत दिया है? खुदा की कसम ये सब लानतुल्लाह है। जब मिलाद करते हैं तो हम मकसद होता है कि घरों से बलाओं को दूर किया जाए, रहमतों का नुज़ूल हो जाए। मिलाद का मकसद ये होता है। लेकिन मिलाद खत्म होने के बाद जब वो बेहयाइयां होती हैं तो जितने शयातीन गए होते हैं वापस जो चार लेकर आते हैं, महीना नहीं लगता कि हर तरफ से एक बला नाज़िल होती है और शादियां टूटने लगती हैं। उस वक्त हम परेशान हो जाते हैं। सदर साहब, सिगरेटी साहब, मौलाना साहब, काजी साहब, मैंने समझा नहीं था रिश्ता ऐसा होगा, लोग ऐसे होंगे, हमने समझा नहीं था। भाई समझा सब था, तूने परानी के साथ ऐसा किया जिसको भोगना पड़ रहा है। इसलिए ऐसा ना करे जिसकी शरीयत इजाजत न देती है। हम चाहते हैं जमाना खुश हो जाए, मोहल्ला खुश हो जाए। खुदा की कसम हमें तो ये चाहने चाहिए कि मेरा अल्लाह खुश हो जाए, रसूलुल्लाह खुश हो जाए। जब रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे तो अपना बेड़ा पार होता है। अपना तो ये चाहिए। हमारे तस्वुरात बड़े अजीब हो गए। हम अपने आप को हाई लेवल उस वक्त समझते हैं जब नंगी नाच नाची जाती है। हम अपने आप को हाई लेवल उस वक्त समझते हैं जब मेरे जिस्म के कपड़े उतर जाते हैं। जबकि मैं समझता हूँ, आप समझ सकते हैं, इंसान के जिस्म पे कपड़े होते हैं, जानवर के जिस्म पे कपड़े नहीं होते। हम इंसान है ना, हमारे लिए सत्रपोशी है। मर्दों के लिए सत्र क्या है? टुकने से घुटने से लेकर नाप तक सिकाना, ढकना वाजिब है और खोलना हराम है। औरतों के लिए हथेली और कलाई और पैर और चेहरे के अलावा पूरे एक एक बाल का हुक्म है कि हालत नमाज में औरत का बाल झलक जाए, नमाज नहीं होगी। मसला ये है। लेकिन अभी हमारी बहनें बेल्ट टॉप पे कहता है पैंट पहनने लगी हैं। उनकी यहाँ तक होती है ये और नमाज पढ़ रही है, ये तो खुला पड़ा है। नमाज कहाँ होगी? होता ही नहीं होता। यहाँ तक चीजें होती हैं, जब नियत बांध के रुकू में जाती हैं यहाँ तक उतर जाता है। नमाज कहाँ होती है? ये मसाइल से वाक़ियत की जरूरत नहीं है। मौलाना लोग का काम है, कहने दीजिए, हम तो वही करेंगे जिससे जमाना खुश है। जब तक अपने घर में रिश्ते नहीं होते हम बड़ा परेशान होते हैं। हजरत दुआ कर दीजिए रिश्ता हो जाए। मेरा बेटा के लिए अच्छी लड़की तलाश रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। बेटी के लिए अच्छा लड़का तलाश रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। हजरत दुआ कर दीजिए। रोजी रोटी में बरकत नहीं है। हजरत दुआ कर दीजिए औलाद नहीं है। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो रब का शुक्रिया नहीं अदा करते, बल्कि हम अय्याशों के अड्डे लगा देते हैं। उस रब को खुश करना चाहिए जिस रब ने दुआ के जरिए दिया है, बल्कि वो काम छोड़ देते हैं और हम बर्थडे बना करके पूरे जमाने को खुश करने में लगे होते हैं। शादियात के तकरीबात में खुराफात मचाते हैं। बड़ा कड़वा लग रहा होगा ये सब। मैं आपको बताऊं, सहाबा किराम की शादी कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सहाबी की जिंदगी बता दूं कि खत्म कर दें? ऐसा कहिए। एक सहाबी रसूल हैं हजरत अब्दुल्ला साहब, रंग ना थोड़ा काला है, रंग ना थोड़ा गाढ़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाया? निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने अमल किया मुझसे है, जिसने अमल नहीं किया मुझसे नहीं है। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, अभी तक मैंने शादी नहीं करी है। यानी जिसको इस्तिताअत है, हैसियत है और नहीं शादी करता है, वो सरकार की सुन्नत से दूर है। अब हैसियत ही नहीं है बीवी रखने का। नानो नफ्का निकाह में क्या होता है? नानो नफ्का सुकना के साथ, यानी खाना कपड़ा मकान के साथ, ये होता है। लेकिन अभी क्या होता है? पहले मांग करके लेटरिन बाथरूम तेरे ही पैसे बनाएंगे। अभी ये चल रहा है। नहीं भाई आपकी बेटी आएगी तो मैदान में जाएगी, हमको अच्छा लगेगा? बोले बिल्कुल नहीं लगेगा, तो 2 लाख देना पड़ेगा। अभी तक तू मैदान में जा रहा था, तुमको अच्छा लग रहा था। क्या गलत करो? तेरी बेटी जा रही थी, अच्छा लग रहा था। हमारी बेटी जाएगी तो हमसे पैसा लेगा, ये मिजाज होता है। अब मांगने वालों का भी सेटिंग बड़ा दूसरे हिसाब से है। पब्लिक सिटी नहीं होना चाहिए। क्या बोलेगा? पब्लिक सिटी। अब लड़की वाला बेचारा सहमा होता, ठीक है नहीं होना चाहिए। अब एक जगह हम निकाह के सिलसिले से बैठे, हमने लिखना शुरू किया, हाँ भाई लेन देन भी कुछ है ना, कोई फरमाइश नहीं। झाड़ से बोला लड़का गवा। हम बोला या बोले तो 2 लाख ले रहा है, छोड़ दीजिए बोला। हम बोले कि 2 लाख जो ले रहे हैं उसको लिख दे। ये सब इसमें लिखाता है मौलाना, आप भी गजब बात करते हैं। हमको एकदम चपद्दी मौलाना समझा। हम बोले ना ये वाला कहाँ लिखाता है, ये तो बहुत गुनाह का काम है। लेने में बहुत कोई लफड़ा नहीं है, बहुत सवाब मिलेगा। 3 लाख दीजिए आप,
मुंह लटक दिया छुछुंदर की तरह। हमें शर्म नहीं आ रही बोलने में? यहाँ लिखना दिक्कत है, लेना जायज है, ये अपना मिजाज होता है, ये फिक्र है लोगों की। लिख देंगे तो शो हो जाएगा ना। हाँ एकदम झलने से बोलेगा, कोई डिमांड नहीं। अगर देखिए हम जो भी मांग रहे हैं, अच्छा कुछ लोग हैं वाकई ऐसे लोग आज भी हैं जो नहीं लेते हैं, लेकिन वो एक बार धिपा भी देते हैं उसमें से कुछ लोग। क्या देखिए, जो भी दीजिएगा थोड़ा ठीक है सामान दीजिएगा, अपना बेटी दीजिएगा। अरे बकलोल कहीं का, जब हम अपना बेटी को दे रहे हैं तो क्या टूटल फटल सामान देंगे? बोलिए आप लोग बताइए, खराब सामान देंगे? ये तो उनको मशवरा दे रहा है, तुम भी आके खरीद के दे दो उनके लिए, आपका बेटी हम दे रहे तब जाने। ये वाला काम नहीं करेगा, एक टेंशन दे देगा। थोड़ा ब्रांडेड, अभी ब्रांडेड जिंदगी बेटा नहीं पहना होगा जूता ब्रांडेड, मौसा बाबू ले जाइएगा तो 4000 का जूता पसंद करेगा। हाँ, जबकि 40 रुपये चप्पल से जिंदगी बिता दिया, लेकिन पोखरा दी होती है। कोट पैंट 20,000 का, कभी जिंदगी में 20-100 का कपड़ा नहीं पहना होगा। हाँ, उसके बाद फिर क्या करेगा, कोटवा पहनवा जाके राजनीतिक काम करेगा। तो मसला है, क्या मसला है? अरे जो पहनते हो वही लो ना। हाँ, वेस्टेज क्यों करते हो, बर्बाद क्यों करते हो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अभी तक ना मेरी शादी नहीं हुई है। आका ने फरमाया, जा फला जगह चला जा, मेरे एक सहाबी हैं, उनकी बच्ची है, रिश्ता मांग ली। रिश्ता मांगना जायज है, रिश्ता मांगना जायज है। लेकिन अभी कोई लड़का आ जाते हैं कि हम आपकी बच्ची शादी करना चाहते हैं, उठाइएगा लड़का सरदार सरिया दिएगा। हाँ, ये लड़का है सही नहीं, लेकिन हालांकि हमने पढ़ाई नहीं है ना। कुरान कहता है अपनी पसंद से शादी करो। 1 2 3 4 अल्लाह ने सलाहियत दी है तो शरीयत के दायरे में चारों को देख सकते हो तो नहीं समझे, वरना दू करे के बाद आदमी लोगे रहते हो जा रहा है आज की डेट में। कभी सेंट्रल जेल, कभी बाहर। गलत कह रहा हूँ, वही रहा है। एक संभालना मुश्किल हो रहा है, जब तबे धक्का लुक्की हो रहा है, तो उसी वक्त कीजिए 2 या 4 जब आप में हैसियत हो दीनदारी के एतबार से उसको हाँ मानने का और उसके हक हुकूक पहुंचाने का। ये मसला है। गए साहबी रसूल, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा दरबार रसूल से आया हूँ। सुभान अल्लाह। क्या कहा? दरबार रसूल से आया हूँ। मचल गए, बोल मेरे आका ने क्या हुक्म दिया? पहले सलाम अलैकुम आका, नबी ने आपको सलाम भेजा है। नबी ने जिसको सलाम भेज दिया उसकी दुनिया भी सलामत हो गई, आखिरत भी सलामत हो गई है। कहा मैंने अभी शादी नहीं किया हूँ, रिश्ते के सिलसिले में मुस्तफा की बारगाह में गया था, नबी ने आपके घर का पता दिया है। कहा अल्लाह अकबर। ऊपर से नीचे देखा, रंग गाढ़ा था। कहा बेटी से तो पूछ लूं, इसलिए बेटी मेरी बालिगा है, उसका हक अपना होता है। जब तक नाबालिग है तब तक माँ बाप जो चाहे कर दे, लेकिन बालिग है तो उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब बेटी बेटा बालिग हो गया तो जहाँ चाहे वहाँ कर ले, वो भी माँ बाप का ख्याल रखे, ये 20 गुना ज्यादा जरूरी है। समझे, उसे भी चाहिए। वरना का हम बालिग नहीं है जी, हमारा जो मन करेगा सो करेंगे। हो सकता है कोई, जो मौलाना रात में बोला ना जी, देखिए अकलमंद लोग मार्केट में बहुत हैं, इससे हम बहुत परेशान हैं। अकलमंद से ज्यादा परेशान हैं। सबसे ज्यादा हमको टेंशन अकलमंद से होता है। इसलिए कुछ का कुछ भी सवाल कर सकते हैं। साहबी रसूल ने ऊपर से नीचे देखा, रंग गाढ़ा है। कहा बेटी से पूछ लूं? कहा भाई अभी तो नहीं करना है, जब करना होगा ना बता दूंगा। कहते अब्दुल्ला असद वापस जाने लगे। दरवाजे के आड़ में बेटी ने पूरी बात समाप्त करी। कहा बाबा कौन था, आया चला गया? कहा बेटी रसूल अल्लाह की बारगाह से आया था, तेरे रिश्ते के सिलसिले में आया था। रंग बड़ा गाढ़ा था, मैं चाहा तेरी तबीयत पहले समझ लूं। कहा अब्बू जान आपने ये देखा, रंग गाढ़ा था, लेकिन किस माताबे नबूवत की बारगाह से आया था, मुझे रिश्ता मंजूर है। सुभान अल्लाह। कहा मुझे रिश्ता मंजूर है। आज की बेटी होती बोले अच्छा की आइए पहले कॉफी पिलाएंगे आपको, सही कि नहीं? हाँ, ये बच्चियां थी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने तालीम दिया उनकी बच्ची है। आवाज दिया है अब्दुल्ला जा शादी की तैयारी कर। सुभान अल्लाह। गए रसूल अल्लाह की बारगाह में, या रसूल अल्लाह रिश्ता तो हो गया, लेकिन बीवी के लिए मेहर में देने के लिए और जोड़ा जामा देने के लिए कुछ भी नहीं है। आका ने फरमाया जा उस्मान गनी के पास चला जा। सुभान अल्लाह। कहाँ भेजा? मौला अली मुश्किल। हजरत उस्मान गनी कौन है? आका के दामाद हैं। 2 बेटियों की शादी सरकार ने उनके साथ की है। मेरे आका ने फरमाया अगर मेरे पास 100 बेटियां होती तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में कर देता। सुभान अल्लाह। यानी वो गनी है, वो उस्मान है जो हया के पैकर हैं, जिनका तकवा तहारत इतना बुलंद है। जब हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे गए तो क्या देखा कि हजरत उस्मान गनी ना अपने नौकर को, अपने गुलाम को डांट रहे हैं। किस बात पर डांट रहे हैं? कि तुमने आज नमक की कंकरियां ज्यादा कर दी।
अगर ये नमक बचता तो कल काम आता। आज तक हम लोग ऐसा हिसाब लिए हैं? हम लोग बोलते हैं नमक ज्यादा कर दिए, खराब कर दिए, ये बोलते हैं। लेकिन वो क्या करें, नमक बचता तो कल काम आता। हम लोग नमक को कोई हैसियत दे रहे हैं, लेकिन कितने बड़े गनी हैं। आका ने फरमाया गनी, क्या कहा? गनी माने मालदार। हजरत अब्दुल्ला सोचने लगे, यार इतना बड़ा हिसाबी हमको क्या देंगे? वापस वे कहा ना, फिर सरकार ने कहा है तो देखता हूँ। फिर वापस गए, फिर देखा गुलाम को डांट रहे हैं। किस बात पर डांट रहे हैं? कि तुमने बत्ती की लौ ज्यादा कर दी, तेल बचता तो काम आता। का ना, बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत महंगा मसला है। वापस होने लगे। हजरत उस्मान गनी ने कहा, ए भाई क्या बात है, तू आता जाता है, इधर आ, मामला क्या है? हजरत अब्दुल्ला कहते मैं डर गया। मैंने कहा कि सरकार की बारगाह में गया था, अपनी शादी होने वाली है, कुछ जोड़े जामे की जरूरत है, सरकार ने आपके दर पे भेजा है। तो हजरत उस्मान गनी ने कलाई थाम ली और अंदर ले गए। सुभान अल्लाह। कहाँ ले गए? अंदर ले गए। हजरत अब्दुल्ला सब कहते मैं घबरा रहा, ऐसा नहीं मुझे अंदर ले जाके लड़ाई हो जाए। गए तो तिजोरी का ताला खोल दिया और जो तेरी तबीयत है ले लेके। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने जब इतना कहा तो हजरत अब्दुल्ला सब कभी उस्मान गनी को देखते हैं, कभी तिजोरी को देखते हैं। क्या देखते क्या हो? वो बात याद करते हो, गुलाम का डांटना नमक ज्यादा होने पे, ये बात सुनते हो, समझ रहे हो कि गुलाम का डांटना बत्ती ज्यादा होने पे, अरे वो सब फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची शैतान का काम है। हम शैतान वाले नहीं, रहमान वाले हैं। ये माल भी नबी का है, उस्मान भी नबी का है। जिसे चाहो अपने साथ ले जाओ, जिसे चाहो अपने साथ ले जाओ। जितना बंडलवा सब देखो टिक करके निकाल रहा है। जिसे चाहो अपने साथ ले जाओ। हजरत उस्मान गनी ने जब इतना कहा तो जरूरत के तहत जो रकम लिया, हम लोग होते तो दबा के लेते, मसला है नहीं है। जरूरत के तहत लिया। बाजार में गए खरीदने के लिए सामान, आवाज आई अल जिहाद, अल जिहाद। ऐ लोगों, पैगंबर तुझे बुलाते हैं, तुम्हारे जान की जरूरत है मज़हब इस्लाम में, तुम्हारी बाजुओं की जरूरत है, तुम्हारी दौलत की नहीं, तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। जिसके कान में आवाज टकराई, रोज़े रसूल दरे रसूल पे हाजिरी दे दिया। हजरत अब्दुल्ला सोच रहे थे कि जवाड़ा जामा खरीदूंगा, कोई आ जाए। अब उसी पैसे से तलवार और ढाल खरीद लिया। कहिए सुभान अल्लाह। क्या खरीदा? तलवार ढाल। ईमान से बताइए, हम लोग होते तो मटिया देते कि नहीं मटियाते? बोले बड़ी मुश्किल से रिश्ता लोग कहाँ जान देवे बात, सही कि नहीं? लेकिन जोड़ा जामा खरीदा नहीं, तलवार ढाल लिया। मैदान कारोजार में गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब अल्लाह के नबी फातिह मैदान हुए, आका ने फरमाया तमाम शुहदा की लाशें इकट्ठा करो। लाई गई लाशें मुबारक हजरत अब्दुल्ला असवद की। मुस्तफा जाने आलम दस्ते सबकत फेर रहे हैं। नबी की आंखें नम हो गई, रोने लगे। नबी आसमान पे नजर उठाया, मुस्तफा ने मुस्कुरा दिया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, पल में मुस्कुराना, पल में रोना, बात समझ में नहीं आई। मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबा, मैंने इनकी शादी करने वाला था, जोड़ा जामा खरीदने गए थे, उसी पैसे से तलवार खरीद लिया, ढाल खरीद लिया, ये शहीद हो गए। इस गम ने मुझे रुलाया है। लेकिन जब आसमाने दुनिया में देखा हूँ तो रब्बे काबा पूरो गिरमा के दरमियान इनकी शादी फरमा रहा है। ये सहाबी रसूल थे जिनका जज्बा ईमानी इतना बेदार था। रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सब कुर्बान है। अभी तो मसला ये है कि शादी सरकार की सुन्नत है, लेकिन इजाब व कबूल के अलावा सारा कुछ लफड़ा ही लफड़ा है। अल्लाह अपने हबीब के सदके होने वाली शादी में बरकतें अता फरमाए, खुराफात से शादी को बचाए। अब हम लोग के जाने के बाद जिसको मत बजा देना, मैं नहीं समझा? हाँ, जिसको बजा दोगे तो जितनी रहमतें हैं सब वापस चली जाएंगी। हाँ, बल्कि जितने मरहूमीन घर में आते हैं, खुश होते हैं जब घर में अच्छा काम होता है, वो लोग भी दूर हो जाएंगे। कौन चाहता है कि मेरे बाप दादा मेरे घर में शादी के मौके से ना रहें? कोई चाहता है ऐसा? जो बजाता है वो चाहता है। हाँ, जब बाजा बजता है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जब जिक्र मुस्तफ़ा होता है तो खुद मुस्तफ़ा तशरीफ आते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। मेरे घर में नबी आ जाएं और हम बाजा बजाएं तो डूब मरने की बात है। शादी सरकार की सुन्नत हो रही है, इसलिए साउंड बंद हो जाना चाहिए आज से, वरना तो और रखोगे कि नहीं नाच शरीफ बजाएंगे, कोई बच्चा आएगा इधर से चिप्स लगा देगा। बड़ा छोटा बच्चा लोग बड़ी मुनाफिक हो गया है। हाँ, चमनियन जो है ना, 20 पैसे 10 पैसे, हाँ, उसको मोबाइल दे दिए, यूट्यूब खोल के रोमन देख लेगा। वो लोग इतना मार्केट तेज हो गया है, लेकिन वही बच्चा पूछेगा अली पे पढ़े तो नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए ना रखेंगे ना बजेगा, समझे? न पेट तो नहीं भरेगा हमारा। हाँ, इसलिए ज़रूरत है कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दिया जाए और ऐसी खराफाती चीज़ें न रखी जाएं
جس کی وجہ سے بڑھ جائیے، جس کی وجہ سے دقت ہو، ہاں ایسی چیزوں کو نہ رکھا جائے جس کی وجہ سے بلائیں آ جائیں۔ ایسے موقع سے، شادیات کے موقع سے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ سنت پہ عمل کرو، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ کبھی ایک بار کر کے لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت، بچہ لوگ نہیں مانتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اب آپ لگ گئے بچے کی خواہش پوری کرنے میں، صحیح کہ نہیں ہے؟ دھوپ ہے، برسات ہے، جاڑا ہے، بھنڈی کاٹنے جانا ہے، صحیح کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ 3 بجے بھور اٹھ کر کے ہم کو اپنا کام کرنا، کھیت جوتنے جانا ہے، کیوں؟ بچوں کا پیٹ چلانا ہے۔ اس بچے سے کہو میرے لال تو پیدا نہیں ہوا تھا، تیرے لیے میں نے سب کچھ کیا، پیدا ہوا تیرے لیے میں نے کیا، تو جوان ہو گیا تیری ہر خواہش پوری کی، میری زندگی میں تیرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، میری ایک بار تو خواہش پوری کر دے۔ بیٹا ضرور پوچھے گا کیا ہے، کہ بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ تو شادی سرکار کی سنت کے مطابق کر دے۔ نہیں مانے گا بچہ؟ ضرور مانے گا۔ اسٹائل تو آپ کے پاس ہو منوانے کا، ہم خود کہتے ہیں نہیں کیا کریں حضرت، مانوے نہیں کیا لگوا تو کیا کریں، کیا کیا جائے، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے، آپ جیسا سبق دیں گے آپ کی اولاد ویسی ہوگی۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجلس پاک کو قبول فرمائے، دونوں بچیوں کو، دونوں جوڑوں کو تمام مشکلات سے محفوظ فرمائے، اور شادی خانہ آبادی کو اللہ نظر بد سے بچائے، برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح نبی کے ذکر پاک سے شروع ہوا، ہم دعا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کی محبت میں مکمل پروگرام ان کا ہو۔ السلام علیکم، آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیے۔